Hello bachcho, welcome to I Group of Education. We see in class 10, in algebraic section, it carries lots of marks, in which the main chapters are polynomials, quadratic equation, arithmetical progression. So we will see some important questions from arithmetical progressions. See, so AP means a sequence. See, I've given an example in which 2, 7, 12, 17. See, the difference is of 5. So it is increasing in a fixed pattern. So pattern is fixed. So in AP, what we see that this is the first term. We call it as A. Then if you will subtract the first term from the second term, then you will get the D, that is 5. And suppose we have to find what is the 31st term. Then we are having a formula in AP. Tn is equals to A plus n minus 1 D. So here Tn means T31. Why? Because we have to find the 31st term. That's why it is T31 is equals to A means 2 plus 31 as n means 31 minus 1, and the common difference is 5. It is multiplied by 5. So we are getting 2 plus 31 minus 1, 30 times 5. So 2 plus 150 and we will get 152. So ये आ गया 152. That means अगर हम इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे तो 31st टर्म जो है हमारा 152 आएगा. This is a sequence. Okay, हम लोग लिख के 31st टर्म नहीं खोज सकते. So there is a formula given. Tn is equals to A plus n minus 1 D. Okay. Now see the second phase question. Which term of the sequence minus 1, 3, 7, 11, dot dot dot. What do you mean by dot dot dot? Means the sequence is going like this only. Is 95. So is 95 means जहां पे 95 आएगा वहां हमको रुक जाना है और बताना है कि 95 इस तरह से अगर सीक्वेंस से लिखेंगे तो 95 कौन सा नंबर का टर्म होगा. So that means 95 जो है वो क्या है? लास्ट टर्म. और बच्चों एपी में लास्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? Tn. अब इस सीक्वेंस में ए कितना है? -1. डी कितना है? अब जरूरी नहीं कि तुम 3 से -1 करो. 3 से -1 कंफ्यूजन है. यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 ऑल्सो. बट हम क्या कर रहे हैं? 3 से माइनस कर रहे हैं -1 को. दैट मीन्स 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4. नाउ फॉर्मूला क्या है? Tn is equals to A plus n minus 1 D. So what is Tn? Tn कितना हमारा जो लास्ट टर्म है that is 95. A कितना है? -1 प्लस n मालूम नहीं -1. D कितना है? टाइम्स 4. अब सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से. Now -1 will come this side. It will be +1. So it will become 96 n minus 1 times 4. Now this times 4 will come this side. ये क्या होगा? ये होगा बच्चों 96/4 और इक्वल्स टू n minus 1. जब हम इसको रिड्यूस करेंगे you will get 2 जा 8 4 जा. So now 24, this -1 will come this side, +1 is equals to n. कितना आ गया n? 25. So which term का मतलब है n कितना है? So n कितना हो गया? 25. Okay. Now next phase का क्वेश्चन है बच्चों. How many terms of 2 digit is divisible by 7? So how many का मतलब again we have to find number of terms. So 2 digit का 7 से divisible होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा है? 14. इस तरह करके अगला नंबर क्या होगा? 21. So on. लेकिन आखिरी नंबर कौन सा है? तो आखिरी नंबर जानने के लिए जो भी 2 डिजिट का आखिरी नंबर होगा उससे हम इस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7, 29, 4 जा 28, 1. यानी कि ये जो 1 रिमाइंडर है, अगर ये 1 रिमाइंडर नहीं होता तो ये 7 से डिविजिबल होता. तो हम क्या करेंगे? इस 1 को 99 से माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा? हमारा आखिरी नंबर मिल जाएगा. और ये है लास्ट टर्म.
इसी को हम क्या बोलते हैं, Tn। अब ये हो गया हमारा A जो फर्स्ट टर्म है। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, 21 minus 14 that is equals to 7. Now the formula is Tn is equals to A plus n minus 1D। Tn के जगह पे लास्ट टर्म, A के जगह पे 14 plus n minus 1 times 7. Again 14 will come this side, it will become 84 n minus 1 times 7. Now 7 will come this side, it will be divided. It is 12 is equals to n minus 1 and then 12 plus 1 that is equals to n. Here we get n is equals to 30. Means 2 digit के जितने भी numbers हैं जो 7 से divisible होंगे वो हमने लिख दिए। टोटल कितने numbers होंगे, 30। Clear? Okay. Suppose बच्चों हमारा nth term दिया हुआ है। Suppose if the nth term is 5n minus 1, find its 15th term. So nth term means Tn. Nth term means Tn, that is 5n minus 1. इससे हम लोग T1 अगर निकालेंगे n के जगह पे 1, that means 5 times 1 minus 1 that is 5 minus 1 equals to 4. अगर T2 निकालेंगे 5 times 2 minus 1 that is 10 minus 1 that is 9. बट हमको क्या निकालना, 15th टर्म। सो डायरेक्टली हम लोग 15 निकाल सकते हैं। 5 times 15 minus 1 75 minus 1 that is 74. सो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नाउ सी दिस पेज ऑफ क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड दिस ईयर इन द अपकमिंग ईयर जो अभी 10th क्लास में है उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट विच term of the sequence 35, 31, 27 and so on is the first negative terms. So इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि देखो ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी वो निगेटिव टर्म आएगा। सो वो जो निगेटिव टर्म आ रहा है वहां पे हमको रुक जाना है, यानी कि जो निगेटिव टर्म है दैट विल बी द लास्ट टर्म। जो भी हमारा निगेटिव टर्म होगा दैट इज द लास्ट टर्म and last term only called Tn. So अगर Tn नेगेटिव होगा that means Tn जो है वो less than 0 होगा। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर्स। Now Tn के जगह पे a plus n minus 1d also less than 0. Now what is a? A is the first term that is 35. What is d? D is 31 minus 35 that is minus 4. Now we'll put the value. So this is 35 plus n minus 1 times minus 4 less than 0. Okay. Now solve it. 35 minus 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया minus 4n plus 4 less than 0. ये टोटल हो गया 35 और 4 39 माइनस 4n लेस देन 0। नाउ यहाँ पे हम 39 को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम नेगेटिव नंबर को उस तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या होगा, इस स्टेप को देखो, 39 लेस देन 4n। नाउ n विल बी हियर एंड 4 विल कम दिस साइड। ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी 9/3/4 n। अब n जो है वो 9/3/4 से बड़ा है। अब अगर 9/3/4 से बड़ा होगा और n तो एक होल नंबर होता है, यानी कि n कितना होगा, n होगा 10। सो 10th टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस which is very important for class 10. Okay, thank you.